Hi, I am Sayyid Rashid from Ahlabad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel Ahlabad Institute. Welcome to my video. Today I will going to take you the intermediate first year physics first chapter, and as you know the name of the chapter is nothing but physical world. Already we have done part 1 and part 2 our physical world chapter. What we have done in part 1 and part 2, I'll just want to put a glimpse on that. In part 1 and part 2 student, we have first of all I started my class with motivation. First that means I speak something about physics and I discuss what you have learned in 8th class and 9th class 10th class physics. After that we were learn something about physics, okay, what is physics, and we have done the definition of physics. After that we did an experiment, okay, Rutherford experiment. After that we learned something about scopes and excitement of physics. These many things we have done till yet. Now today I will going to take you one step forward in this chapter, physical world intermediate first year first chapter, okay, physics. So today we will going to learn something about the fundamental forces in nature. That means in nature we have fundamental forces. What is the fundamental forces in nature? For that I will going to read something. We all have an intuitive notion of force. In our experience, force is need to push, carry out, throw object, defend or break them. We also experience the impact of force on us, like when a moving object hit us or we are in merry-go-round, go around. From this intuitive notion to प्रॉपर साइंटिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द फोर्स इज नॉट ए ट्राइवल मैटर. देखिए यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है स्टूडेंट, जो हमारा फोर्स है, हम फोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं. जैसा कि फोर्स का मेन काम क्या है, इन 8th क्लास ऑल्सो वी लर्न मोर अबाउट फोर्स. 8th क्लास के आपको फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारा फोर्स का था, लेकिन फोर्स का मेन चीज़ क्या है, फोर्स किसे कहते हैं? फोर्स इज नथिंग बट एनीथिंग पुल और पुश. कौन सी भी चीज़ पुश हो जाना या पुल हो जाना उसका फोर्स रहते. फोर्स क्या करेगा? फोर्स दो चीज़ें करेगा, या तो बॉडी को क्या करेगा, उसका डायरेक्शन चेंज करेगा या फिर उसका शेप चेंज करेगा. यानी फोर्स का काम क्या रहेगा? इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट विल चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, अगर चाहिए अच्छा है, जैसा ये मार्कर है, ये क्या हो गया, अच्छा है. अगर मैं कुछ को डिफॉर्म कर डालना है, तोड़ देना फोड़ देना है, तो मैं ब्रेक कर देता हूँ. वैसे ही कोई स्क्रैप है, जैसा कि आयरन वगैरह दूसरे स्क्रैप्स रहते हैं, उसको हम क्या करेंगे, पहले गर्म करेंगे. गर्म करने के बाद कुछ अलग अलग हीट जो है, हीट के अंदर अलग अलग फोर्सेस रहते हैं, वो पूरा मेल्ट होके एक मेटल बन जाएगा. तो फोर्स का काम क्या है? मेनली फोर्स का डेफिनेशन की बात करेंगे तो एनी पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स हो जाएगा. फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Fundamental forces, this only try to explain our first chapter physical world. Now we have few forces with us, like I already wrote the names of the force: gravitational force, electromagnetic force, strong nuclear force, towards unified of force, weak nuclear force. These type of forces we have with us. One more thing I'd like to tell you students, as this is the chapter consist of only 2 marks question out of 60. हमारे इंटरमीडिएट का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर में से सिर्फ 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा और वह टोटली 60 मार्क्स में से रहेगा. तो क्वेश्चन क्या रह सकता है? देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एक तो ये है कि सिंपली वो पूछ देगा व्हाट इज फिजिक्स, या फिर स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स पूछेगा, वो तो ऑलरेडी हम स्टडी कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता, हाउ मेनी फंडामेंटल फोर्सेस आर इन नेचर, यानी कि नेचर के अंदर फंडामेंटल फोर्सेस क्या है. तो आपको सिंपल लिखना है, देर आर लॉट मेनी फंडामेंटल फोर्सेस इन अवर नेचर, सम ऑफ देयर आर, बोल के इस तरीके से ये 5 फोर्सेस के नाम लिख दीजिए आप. ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, टुवर्ड यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स. अब ये फोर्सेस के बारे में ऑलरेडी वी हैव लर्न, ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है. देखिए स्टूडेंट, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक ऐसा फोर्स है, हमारे जो अर्थ के अंदर एक फोर्स प्रेजेंट रहता है जो हमको हमेशा अर्थ की तरफ ग्रैब करता, खींचता टूवर्ड्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है. बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट लिमिटेड अप टू अर्थ इटसेल्फ. ग्रेविटेशनल की एक बहुत बड़ी चेन रहती, जैसा कि आप समझ सकते हैं. ये अर्थ है हमारा, अर्थ का एक ग्रेविटी रहता, मून है, मून की ग्रेविटी क्या करती, मून और अर्थ की ग्रेविटी एक दूसरे को ऐसा कोऑर्डिनेट करती कि मून अर्थ के ऊपर यानी कि रिवॉल्व होते रहता. वैसे ही सन कहीं पे दूर है हमारे अर्थ के, ठीक है, सन की और यानी कि अर्थ की ग्रेविटी कुछ इस तरीके से ग्रैब होती कि हमारा अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व होते रहता. तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो
बेसिकली एक ऐसा फोर्स है जो एक दूसरे को खींच के रखता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो बड़ा ही बेहतरीन फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से हमारे पास यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और बहुत सारे हमारे पास फायदे हैं, आप जैसा कि जानते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स क्या है? बास फोर्सेस न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, उसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। पहले तो न्यूक्लियर फोर्स किसको बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स इसको बोलते हैं स्टूडेंट, जो एटम्स के अंदर फोर्सेस प्रेजेंट रहते हैं उसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वैसे ही आपका टूवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स है वीक न्यूक्लियर, तो इसको आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी बोल सकते हैं अगेन, और ये आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है। ये तो आपको फोर्सेस के बारे में हो गया। नाउ अभी मैं लेसन को बिल्कुल एंडिंग करने जा रहा हूँ। लेसन को एंड करने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता देंगे। यहाँ पे हमारे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट लेसन फिजिकल वर्ल्ड में कुछ साइंटिस्टों के नाम और उनके इन्वेंशंस के बारे में दिया, तो इसमें से दो साइंटिस्टों का यूजुअली वेरी इंपॉर्टेंट है आपको, और वो दो साइंटिस्टों का नाम यानी कि एक है सर सीवी रमन है, सीवी रमन के जो है क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और एक है हमारे पास चंद्रशेखर। ओके, सर चंद्रशेखर ने क्या इंट्रोड्यूस किया था और क्या उनके स्कोप से, ये दो साइंटिस्टों के नाम के हवाले से 2 मार्क्स में सवाल पूछता है। तो ये आप बहुत आसान है, एक 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि मैं बोला था, एक सर सीवी रमन का, श्री चंद्रशेखर सर का याद रखिए, फंडामेंटल फोर्सेस याद रखिए, व्हाट इज फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट। ये 4-5 क्वेश्चन आप पढ़ लिए तो 2 मार्क्स आपको मिलेगा। एज एन इंट्रोडक्शन ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपको, बट एज एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लिए तो 2 मार्क्स का आएगा, तो हम एक अलग मकाम है इसका, एक अलग प्लेस है। आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि 4 मार्क्स के और 8 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम्स में आ सकते। तो मैं थोड़े से डिस्कवरीज यहाँ पे रीड कर देता हूँ और थोड़े स्क्रीन पे भी लगा देता हूँ। सो वी विल जस्ट रीड सम डिस्कवरीज। ओके, लिसन केयरफुली स्टूडेंट, आई एम जस्ट टेलिंग द नेम्स ऑफ few scientists with their major contribution और discoveries as well as I am telling from which country they are belongs। तो सब में पहले हम बात करेंगे यानी कि ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है विक्टर फ्रांसिस हैज। इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो कॉस्मिक रेडिएशन इन्होंने निकाला था, और इनका जो कंट्री है, जो कंट्री से वो बिलोंग करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया। सेकंड, R.A. मिलीकैन, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किस तरीके से मेज़र करते हैं उसके बारे में उन्होंने डिस्कवरी किया था, और ये जो कंट्री जो जिससे बिलोंग करते हैं वो है USA। ठीक है, नेक्स्ट है रुदरफोर्ड का तो अपने को मालूम ही है, 9th क्लास में पढ़े, 10th में पढ़े, रुदरफोर्ड। इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था मेनली न्यूक्लियस जो है एटम का जो मॉडल, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था रुदरफोर्ड ने, और जो न्यूजीलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है नील्स बोर। वाह सर, नील्स बोर तो 9th में भी था, 10th में भी था। तो नील्स बोर का भी सेम, नील्स बोर का काम किया था उन्होंने मेनली क्वांटम मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम का जो क्वांटम मॉडल है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जैसा कि आप जानते हैं KLMN वो शेल्स के बारे में वो किया था उन्होंने, ये पूरा कंट्रीब्यूशन था। और ये जो नील्स बोर के और रुदरफोर्ड के बारे में आप डिटेली इसी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं आपके। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है सीवी रमन। सर सीवी रमन ने हमारे पास क्या किया था, इनइलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक ऐसा कंट्रीब्यूशन था ये, इसको हम रामन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। इन्हों जो बिलोंग्स करते इंडिया से बिलोंग करते ये साइंटिस्ट। तो इन इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मॉलिक्यूल्स, यानी कि होता ये है स्टूडेंट, देखिए जब भी लाइट गिरती किसी के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होती ना, तो हमको ये मालूम था कि जो लाइट गिरती उसके अंदर इंटेंसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, सब है। जो रिफ्लेक्ट लाइट होती उसके बारे में जो स्टडी किया था कि उन्होंने बोले कि जो लाइट, इंसिडेंट लाइट के अलावा रिफ्लेक्टेड लाइट में भी आपको फ्रीक्वेंसीज रहता और आपका दूसरे जैसे इंटेंसिटी है, ये पूरा रहता, स्टडी करे थे। इसके बहुत सारे फायदे हमको हासिल हुए थे। एक है लुइस वेक्टर डी ब्रोगली के बारे में भी केमिस्ट्री में जाओ भाई आप, वहाँ पे ज़्यादा मिलता। तो डी ब्रोगलिस ने क्या किया था, वेव नेचर ऑफ मैटर, ये जो कंट्री से ताल्लुक़ रखते थे ना फ्रांस से। अब ये वेव नेचर ऑफ मैटर क्या है, मैटर के अंदर क्या है, हम समझते थे सिर्फ मैटर के अंदर सिर्फ नॉर्मल ऐसा रहता, लेकिन उन्होंने मैटर के अंदर भी वेव्स एग्जिस्ट करते बोल के डिस्कवरी करे थे। इनका नाम है डी ब्रोगली। ठीक है, उसके बाद MN साहा, इन्होंने थर्मल आइसोलेशन के लिए निकाला था, इंडिया से बिलोंग्स करते हैं। SN बोस साइंटिस्ट, इन्होंने क्वांटम को जो मॉडल है उसमें और
स्टैटिस्टिकली बताया था, इन्हों भी इंडिया से बिलोंग्स करते। वैसे ही हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। तो और कुछ इंडिया के साइंटिस्टों की बात कर लेंगे हम। एक है होमियो जहांगीर बहाहा, इनका जो काम था कैस्केडिंग प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, जो कॉस्मिक रेडिएशन के अंदर के जो भी स्टडी थी वो करे थे उन्होंने। और एक हमारे एस चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर लिमिट निकाले थे। और स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार, स्टार का स्ट्रक्चर कैसा रहता हो, एवोल्यूशन यानी वो स्टार्स किस तरीके से ग्रो होता, किस तरीके से डेड होता, उसके बारे में पूरा इन्होंने निकाला था। तो ऐसी डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट आपको इन्वेंशंस हैं। लेकिन ये इन्वेंशंस में क्या रहता, टेक यानी कि एक चीज़ आपने इंट्रोड्यूस किया, जैसा कि आप अगर बीएससी की अगर बात करेंगे तो बीएससी प्योर साइंस रहता। जैसा कि मार्कर है, तो मार्कर में क्या रहता, आपको एक प्लास्टिक का केस रहता, उसके अंदर आपको कॉटन से बने हुआ एक उसका रुई यानी कि उसका जो मटेरियल है वो रहता, उस पर प्लास्टिक कोटिंग रहती है और इंक रहता, उसके अंदर कैप रहता। इस तरीके से बीएससी में आपको पढ़ा दिया जाता। तो ये प्योर साइंसेस बोलते। वेरस अगर हम बीटेक या इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो वो अप्लाइड साइंस रहते। तो उधर क्या करते, मटेरियल लेके आके देते आपको, केस रहेगा, आपको कॉटन रहेगा, प्लास्टिक, आप मार्कर बना के दिखाइए। प्योर साइंस और अप्लाइड साइंस में फर्क रहता। तो ये जो इन्वेंशंस जो रहते हैं साइंटिस्टों के, ये प्योर रहते, लेकिन ये इन्वेंशन से जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं, जो फायदे आ रहे हैं, वो लिंक क्या रहती है टेक्नोलॉजीज के बीच में, वो भी थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन बिफोर दैट आपके स्क्रीन पे मैं एक इमेज लगा रहा हूँ, डिफरेंट साइंटिस्ट विद देयर लाइक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी एंड कंट्रीज बिलोंग्स टू। नाउ द टाइम टू सी द ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। Hope you have seen the different scientist names with their discoveries and also their countries. Now the time to see look a glimpse link between technology and physics. फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच में जो लिंक है वो हम देखेंगे। तो टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं, जैसा कि मैं बताया था आपको, जो अप्लाइड एप्लीकेशन रहता है उसका। तो देखिए स्टीम इंजन जो निकाला गया था वो किसके बेस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ थर्मोडाइनमिक के लॉस के बारे में था। थर्मोडाइनमिक के लॉस आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। फिर हम इंटर की फिजिक्स में भी थर्मोडाइनमिक के लॉस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर का जो इन्वेंशन था उससे क्या हुआ, कंट्रोलिंग न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए स्टूडेंट, कुछ एलिमेंट्स रहते हैं या फिर कुछ आपको सब्सटेंस रहते हैं, जैसा हम हवा में नहीं रख सकते उसको, जैसा अगर हवा में रखेंगे भड़ बोल के उड़ जाते हैं लोग। हाईली जो है रिएक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं, तो उनको न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ उसको रखा जाता है। नेक्स्ट थिंग, रेडियो एंड टेलीविज़न। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास रेडियोस है, टेलीविजन है। तो ये जो है जनरेशन प्रोपोगेशन ऑफ डिटेक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो प्रोपोगेशन रहता, किस तरीके से चली थी, किस तरीके से वो हुई, उसकी मदद से आप पूरी तरीके से रेडियोस एंड टेलीविजन्स निकाले। जैसा कि आप जानते कि टेलीविज़न का जो एवोल्यूशन था, सब में पहले तो इतना बड़ा एक बॉक्स जैसा टीवी रहेगा था हमारे पास। फिर उसके बाद नेक्स्ट होते होते कलर टीवी की तरफ आए। फिर कलर टीवी के बाद अल्ट्रा बोल तो यानी कि वो एलसीडी से थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा, मोटा रहेगा, और जो नॉर्मल टीवी से पतला रहेगा। फिर होते होते अब हमारे पास एलईडी या फिर एलसीडी टीवी है। पता नहीं आगे और क्या क्या टेक्नोलॉजी बढ़ सकती। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स किससे निकाले, डिजिटल लॉगिंग नाम का एक स्टडी रहेगी फिजिक्स में, उसकी मदद से निकाले। नेक्स्ट है लेज़र लाइट कैसा इन्वेंट करें, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमिशन ऑफ रेडिएशन, अलग अलग रेडिएशन को इमिट करेंगे यानी कि बाहर भेजेंगे, उस तरीके से निकाले। प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड, जो अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड बोल के क्या रहता है बोल तो कुछ यानी कि इंडस्ट्रीज रहेंगे या फिर कुछ हॉस्पिटल्स रहेंगे जहाँ पे मैग्नेट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता, तो उस तरीके के जो हो रहे थे। रॉकेट जो निकाला गया है न्यूटन के लॉस की मदद से निकाला गया है, जैसा कि आप जानते। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक जनरेटर जो निकाला गया फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से निकाला गया था। वैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसा निकाला गया था, कन्वर्जेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस तरीके से। एरोप्लेन हमारा जो निकाला गया था प्योरली हमारा एक बर्नौलीज थ्योरम बोल के है, आगे हमको इंटर फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में आएगा। बर्नौलीज प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनामिक, इसकी मदद से निकाला गया था। ये पूरा लिंक बिटवीन लाइक टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स और टेक्नोलॉजी का लिंक है। और फिजिक्स को लेके तो हम इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन को अच्छे से वॉश करना है कि फिजिक्स पे बहुत मेहनत करना है। आइदर यू बिलोंग्स
टू MPC और BPC, चाहे आप BPC से बिलोंग्स करो या MPC से बिलोंग्स करिए, आपको फिजिक्स पे थोड़ा अच्छा पढ़ना है, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर पूरा फिजिक्स रहेगा 14 चैप्टर से अराउंड आज की तारीख में। नेक्स्ट आपको सेकंड ईयर में भी 14 to 15 चैप्टर या 16 चैप्टर्स आपको फिजिक्स में आएंगे। फिजिक्स को अच्छे से अभी से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इट विल रियली हेल्प यू फॉर योर फर्स्ट ईयर एज वेल एज सेकंड ईयर। एज यू नो दैट जो हमारा फिजिक्स है टोटल पेपर हमारा 60 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 60 में से आपको अच्छे से जितना आप अच्छे मार्क्स से ला सकते, आप जितना अच्छा पढ़ेंगे उतने अच्छे आपको मार्क्स आते। तो आई थिंक आई एम जस्ट एंडिंग माई फर्स्ट लेसन फिजिकल वर्ल्ड हियर। ओके, वी विल नाउ एंजॉय आवर नेक्स्ट लेसन नेम एज यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन बड़ा मज़े का लेसन है और मज़ा आती, इसमें भी आपको मज़ा आई होंगी। खाली आप इसमें क्या जाने, फिजिक्स का मेन डेफिनेशन जाने और फिजिक्स के स्कोप्स और एक्साइटमेंट डाले, डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट इन्वेंशन क्या क्या करे थे, उसके साथ साथ जो हमारे मेन फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो भी हमने जाना था। तो ये हमारा फिजिक्स को लेके फर्स्ट लेसन हमारा इंटरमीडिएट का फिजिकल वर्क ख़त्म हो गया। और कमिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करेंगे तो 2 मार्क्स का आता, जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल दिया था आपको। एक 5-6 क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फिजिक्स, सेकंड क्वेश्चन है स्कोप्स एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, थर्ड क्वेश्चन है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर CV रमन टू दी फिजिक्स, एंड फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा व्हाट आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चंद्रशेखर। उसके अलावा भी कुछ ऐसा अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर है फिजिक्स को लेके फर्स्ट ईयर के, मैं आगे आपको जब भी हमारी ऑनलाइन जूम की क्लास होती है या फिर आप हमारे व्हाट्सएप का एक ग्रुप रहता है, वो ग्रुप में आप डाउट्स पूछ सकते, ठीक है। तो वी विल जस्ट क्लियर दैट एनी left doubts in our online sessions. Okay, so that's all about our physics intermediate first year first chapter physical world. So now we will continue next topic, like next chapter in our next session. Till then, take care to all students as well as viewers. So you were watching like Ahlebad Institute YouTube channel from Ahlebad High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. I am Sayyid Rashid. Till then, take care. Thank you. Have a great time.